Hello, champions. Welcome to the next lecture on the last minute revision. Today, I will explain you the part A of the differential equations related to the initial value problem. As usual, I will explain you all those shortcut tricks in the 15-second time period, जिसकी वजह से आपका JRF पक्का हो जाए. Myself, Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now, I can discretize the differential equation into the two different category. The category one is whenever we are talking about the initial value problem, and the category two, there is a type two or the part two, where we are talking about the how we can find the solution of the differential equations. तो आज के लेक्चर में we will discuss only about the initial value problem, where our target is to how you can analyze whether the differential equation has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions. Second is related to the initial value problem. We can discuss about the Lipschitz conditions, maximum or the largest interval of the existence. So I will cover all those questions related to these three aspects in the today's lecture. And based on your comments and the response, I will upload the second part. अगर आप चाहते हो second part भी आए, you can put as a comment in the on the video at the YouTube. For more details, you can watch by my playlist last minute revision. जैसा कि आप देख पा रहे हो last minute revision of the real analysis, linear algebra part A, part B, calculus of variation, continuity, differentiability, and many more lecture like calculus of variation in triangle equation, all are available. इसके साथ साथ मैंने आपको last 15 day strategy and how you can attempt the examination already एक बहुत ही खूबसूरत वे में explain करा हुआ है. चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अप्रोच के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स. Whenever you have the first order differential equation is of the given form, then we can analyze whether the given solution, given first order initial value problem has a unique solution or not. We will consider two cases. Either A, that is the coefficient of the y raised to power alpha is a positive, or A is my less than 0. Based on the value of the A positive and negative and the nature of the C, we can classify as a unique and the infinite solutions. Based on whether C is my positive, then you can get as a unique solution. If C is my 0, we can get as a infinitely many solutions. However, whenever A is my less than 0, we can get as a unique solution whenever C is my 0. Fine. इस शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर every year एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. फाइन. तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए इस क्वेश्चन को. जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे कमेंट कर दो जिससे मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूं. चलिए लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. योर टारगेट इज टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस. फाइन. आपसे क्या ये पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? नो, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट वेदर द सिस्टम, whether the differential equation has a unique or infinitely many solution. Now look at the statement P. X prime is x raised to power half. So clearly say A is my 1, coefficient of the alpha is lies between 0 and 1, and C which is my 0. Fine. Since A is my greater than 0 and C is my 0, that means you will get as infinitely many solutions. You can see C is equal to 0, A is my positive, you can get as infinitely many solutions. So your right answer will be P, unique solution cancel. Third is the right answer. Look at the Q statement. Now on the other hand, Q will be minus y raised to power half. So A will be my minus 1 which is less than 0. C is equal to 0. You will get as the unique solution. So Q is the right answer. B and C are my correct answer. कितने सेकंड लगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में? 5 या 10 सेकंड. और उतने ही सेकंड लगेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में. लुक एट द नेक्स्ट वन. कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. y प्राइम which is equal to root of y plus epsilon. फाइन. अगर इसमें भी वही पूछा है इन्होंने, मोर देन वन सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स देखो तो उसमें क्या होना चाहिए था? y की पावर अल्फा, लेकिन मॉडुलस नहीं होना चाहिए. फाइन. तो अगर मॉडुलस नहीं है तो पहले मैं इस मॉडुलस को खत्म करता हूं. फाइन. सो आई कैन चूज h इज माई y प्लस एप्सिलॉन. इज इट ओके? तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? y प्राइम इज mod ऑफ h रेज टू पावर हाफ. तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि h इज माई पॉजिटिव,
तब तो आपका उसी केस में बन जाएगा ना, उस केस में ए आपका 1 हो जाएगा, फाइन, सी आपका वाई नोट हो जाएगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया एच इज माई पॉजिटिव, नाउ हमारा पूरा फोकस एच पॉजिटिव पे प्रूव करने का है। तो यही तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई एक एप्सिलॉन ले लो जो ग्रेटर देन जीरो है, लेट्स से 0.01, देन फॉर ऑल वाई नोट, कोई भी एक वाई नोट ले लो, से -0.0 माइनस एनी वाई नोट, सो लेट्स से 3 ले लिया, इन दोनों का सम करो, वाई नोट प्लस एप्सिलॉन इज माई पॉजिटिव, तो जैसे वाई नोट प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव हुआ तो एच विल बी माई पॉजिटिव, फाइन। तो इसका मतलब आपके पास ये मोड ऑफ कितना हो जाएगा, वाई प्राइम इज एच रेज टू पावर हाफ, और वाई नोट आपका कितना है, नॉन जीरो, सो वेन एवर एच ए इज माई ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज माई इस एज ए यूनिक सोल्यूशन, पर यहां तो आपको क्या कह रहा है, मोर देन वन सोल्यूशन, द S1 इज माई फॉल्स स्टेटमेंट, इज इट ओके? ओके, सेकेंड केस, देयर इज अ वाई नोट, तो पहले वाई नोट चूज करिए आप, एनी वाई नोट, फाइन, आप जीरो भी ले सकते हो, लेट्स से वाई नोट इज माई जीरो, फाइन, एप्सिलॉन कैन हैव एनी नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, इफ यू ऐड देम आपका एच कितना हो जाएगा, एच इज माई पॉजिटिव, तो एच इज पॉजिटिव, तो फिर से ये कंडीशन बन गई, फाइन, तो आपका इनिशियल कंडीशन क्या हो गया, वाई नॉट इज जीरो, ए इज माई 1, वाई नॉट इज माई जीरो, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, फाइन, बट क्या ये, बट ही सेड फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर इज अ वाई नॉट, फाइन, तो क्या अगर मैं एक ऐसा अलग से वाई नॉट ले लूं, लेट्स से वाई नॉट इज माई 3, और माइनस ले लो आप, -3, सो एप्सिलॉन को मैं ग्रेटर देन 3 ले लूं, फाइन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच इज स्टिल पॉजिटिव, तो इस केस में आपके पास ये आपको क्या देगा, आपके पास इट विल गिव द यूनिक सोल्यूशन, फाइन, पर यहां पे कह रहा है मोर देन वन सोल्यूशन, दैट इज आल्सो माय फॉल्स स्टेटमेंट, सो बोथ आर माय फॉल्स स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, फाइन। अगर आपको जीरो वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, लाइक से इफ यू टेक वाई नॉट इज माई जीरो, फाइन, तो ये आपका एच कितना हो जाएगा, एच इज माई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज माई ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास ये सोल्यूशन क्या बन गया, एच प्राइम इज रूट ऑफ एप्सिलॉन, नाउ क्लियरली से द राइट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एच, फाइन, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, तो अगर आपको पता है एच प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो व्हाट डज इट मींस, दैट इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। रिमेंबर स्टूडेंट, आप इससे ये नहीं कह सकते कि ए 1 है और एप्सिलॉन, बिकॉज आपको जो पावर चाहिए वो y की चाहिए, एंड y इज मस्ट बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे आपका डिपेंडेंट नहीं है, फाइन, सो यू विल गेट एज द यूनिक सॉल्यूशन बोथ द केस, सो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे दिक्कत आ रही है फॉर ऑल की वजह से, फाइन, अगर यहाँ पे बोला जाता देयर एग्जिस्ट वाई नोट, तो वाई नोट तो आप जीरो एग्जिस्ट करा के यूनिक सोल्यूशन दे सकते थे आप, fine, but he said for all epsilon. Look at the next one. Clearly say for the statement A, what is the A? A is my 1, fine, which is my greater than 0, and C is my 0. तो क्या कंडीशन आपके पास, whenever A is my greater than 0, C is equal to 0. Yes, infinitely many solution. Fine. So infinitely, so this one has infinitely many solution, one is uniquely cancel, one has multiple solution, correct answer. You can see A is equal to -1 less than 0 and C is equal to 0, you will get a unique solution. So second and the third is my correct answer. चलिए look at this one. चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, you can solve it and let my answer in the comment box quickly. आपसे फिर वही पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एट द मोस्ट टू इनफाइनाइटली नो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। चलिए 10 सेकंड दिए आपको, सॉल्व करिए, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, गेट योर आंसर। Okay, fine. Now you can see what is the coefficient of the y is 1, which is my greater than 0. C is my 0, fine. But condition क्या होनी चाहिए थी, जो आपका y अल्फा है वो आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। Now you can see 5k over k plus 1 is always lies between 0 and 1. तो इसका मतलब क्या हो गया ये, you will get as infinitely many solution, unique solution cancel, add the most 2, that is a finite, cancel infinitely many solution, no continuously differentiable
सोल्यूशन, दैट इज अ नो सोल्यूशन, पर यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिला है, तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये डाउट है ये कैसे आया, यू कैन चूज k इज एनी पॉजिटिव नंबर, लेट्स से k इज इक्वल टू 1, तो ये कितना बन जाएगा 5/7, विच इज अगेन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। चलिए अब आप ये दोबारा से करिए, 5 सेकंड दे रहा हूं, इस बार ज्यादा नहीं देता, 5 सेकंड दे रहा हूं। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जो स्टूडेंट्स कमेंट करेगा आई कैन अज्यूम दैट कि वही आप सीरियसली वीडियो को देख रहे हो, फाइन, देन ओनली आई कैन अपलोड माय न्यू वीडियोस फॉर यू। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे देन हाउ आई कैन अज्यूम दैट कि माय वीडियोस आर बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। क्लियर? तो कितना आंसर हो गया 60 y की पावर 2/5, सो a कितना हो गया आपके पास 60 विच इज ग्रेटर देन 0, अल्फा 0 1 में है और c इज इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लग रहे हैं ना 5-5 सेकेंड? चलिए लुक एट दैट। u is a continuously differentiable function such that u prime is 4 u of 3/4 and u of 0 is my 0। तो इससे क्या मिलेगा, a is my 4 which is greater than 0, c is equal to 0 और alpha lies between 0 and 1, so you will get infinitely many solutions। क्लियर? अब वो सोल्यूशन कैसे होंगे वही पूछ रहा है ये आपसे, तो ऑप्शन से निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन, क्या चेक कर लो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। t की पावर 4, लेफ्ट साइड पे फिल करो, डेरिवेटिव इज 4t क्यूब, राइट साइड पे फिल करो 4 t की पावर 4 रेज टू पावर 3/4 विच इज सेटिस्फाइड। यस, लुक एट द थर्ड, अगेन इट इज लाइक से t की पावर 4, बट the only difference is they are shifting the origin, fine, शिफ्ट बाकी तो 0 ही है ना, तो t की पावर 4 ही तो सोल्यूशन है आपके पास, बट दे आर द ओनली डिफरेंस इज दे आर शिफ्टिंग द ओरिजिन फ्रॉम द 1, तो यहाँ पे भी t-1 है, सेटिस्फाइड, सिमिलरली सेटिस्फाइड। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता कि लाइक 0 एंड t-3 की पावर 4, बट यहाँ पे t इज ग्रेटर देन 2 लिखा होता, फिर तो शिफ्टिंग प्रॉपर ही ना हुई, बिकॉज यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ और यहाँ सेम चीजें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट नाउ ऑल आर माई करेक्ट आंसर ऑफ दी प्रॉब्लम। कोई डाउट किसी को इस अभी तक के क्वेश्चंस के अंदर? फाइन, अभी मैं आपको, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है, टॉपिक्स ज्यादा है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ। फाइन, फॉर मोर डिटेल अबाउट सच काइंड ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स आई कैन रेफर यू कैन मस्ट वॉच अबाउट माई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गेट 1996 to 23। बच्चों वीडियो चाहे गेट का हो चाहे CSN नेट का हो, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना मैथमेटिक्स का। फाइन, यू कैन फॉलो माय यूट्यूब चैनल, फाइन, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो चैनल पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का लेक्चर। चलिए, सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड द यूनिकनेस थ्योरम, अगेन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। व्हेन यू कैन से द एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, इफ यू प्रूव दैट योर f is my continuous, f is my continuous on the domain y of x नॉट इज, सबसे पहले क्या करो, इसकी रिटेंगल बना लो आप। रिटेंगल कैसे बनाते हैं आप, x माइनस एक्स नोट पॉइंट विच इज लेस देन इक्वल टू a, और y के लिए y की पॉइंट बना लो, y माइनस वाई नोट इज लेस देन b। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, a एंड b आर माई फाइनाइट वैल्यूज, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती। फाइन, तो ये आपकी रिटेंगल बन गई ना आपकी x नोट और y नोट, और अगर ये आपका f कंटिन्यूस है इस डोमेन के अंदर, देन वी कैन से there exists at least one solution, मतलब नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने प्रूव कर दिया f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। फाइन, और कंटिन्यूस कैसे प्रूव करोगे आप, उसके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है। यू कैन वॉच माय प्लेलिस्ट CSR UGC नेट एंड यू कैन सी माय लेक्चर ऑन द कंटिन्यूस फंक्शन। इस कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर पूरा पूरा आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स है, कंटिन्यूस पॉलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन है, कोसाइन है। फॉर द यूनिकनेस सॉल्यूशन, अब देखो ये अगर आपका पास f इस फॉर्म का हो गया, देन यू कैन गेट एज ए यूनिक सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द a एंड द नेचर ऑफ द y नॉट। बट अगर आपके पास f इस फॉर्म का नहीं है, देन हाउ वी कैन चेक अबाउट द यूनिकनेस, वी कैन प्रूव दैट f इज अ कंटिन्यूस एंड del f अपॉन del y इज माई कंटिन्यूस। यहाँ पे y कौन सा है, y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल है
उसके साथ डेरिवेटिव करिए. इफ बोथ आर माई कंटिन्यूस देन it called as the uniqueness solution. That means if Lipschitz condition will satisfied, we can say the given initial value problem existence of the unique solution. और अगर किसी केस में del f upon del y आपके पास इंफिनिटी चला गया for some y naught, that means the Lipschitz condition is not satisfied. Once the Lipschitz condition is not satisfied, then the solution is either no solution or infinitely many solutions. और नो सॉल्यूशन को आप डिस्कार्ड कर सकते हो बाय यूजिंग द एग्जिस्टेंस थ्योरम. अगर आपका एफ कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वाई और ऑल द डोमेन में, तो आपके पास ये नो सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा. फाइन. अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं. लुक एट दैट. द फंक्शन g does not satisfies the Lipschitz condition with respect to u. That means your target is to calculate del u del z by del u. करो, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? टी स्क्वायर 1/5 u की पावर -4/5. So with respect to neighborhood of 0, so clearly say whenever u approaches 0, because of this negative, that value goes to the infinity. Once it's infinity, that means Lipschitz condition not satisfied. तो ये भी तो वही कह रहा है, does not satisfy the Lipschitz condition. Clear? Look at the second one is a no solution. तो नो सॉल्यूशन होगा कि मोर देन वन सॉल्यूशन होगा. दो मेथड आपके पास है. अब देखो ये वाला तो उसी वे में हो जाएगा अल्फा की फॉर्म में. व्हाट इज द ए इज माय टी स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट इज द सी इज माय 0. व्हाट डज इट मींस? दैट इंप्लाइज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आपका कैंसिल हो गया. मोर देन वन सॉल्यूशन करेक्ट हो गया. फाइन. Is it okay? Moreover, you can also say अगर नो सॉल्यूशन को आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? बिकॉज योर फंक्शन f u की पावर 5 डोमेन के आपकी 0, so x minus 0 is less than a, y minus 0 is less than b, and a and b are my finite. Clearly say the function is my continuous. अगर ये continuous है, that means there exists at least one solution by the existence theorem of the initial value problem. तो at least one solution है, तो no solution आपका वहां से भी कैंसिल हो गया. क्लियर? तो दो मेथड आपके पास, चाहे तो आप फर्स्ट अप्रोच से अप्लाई कर लो, चाहे सेकंड से रिजल्ट सेम आएगा. लुक एट द g इज अ टी स्क्वायर ऑफ u हाफ u की पावर 1/5 satisfies the Lipschitz condition. वो हम पहले ही दिखा चुके हैं. does not satisfy the Lipschitz condition. अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा Lipschitz condition, तो यूनिकनेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. That option is cancelled. A and C are my right answer of the problem. Look at the next one. F is a C1. What is the meaning of the C1 is continuously and differentiable function first time. If F is my continuous, F is my differentiable and bounded. ये तीनों चीजें हो गई आपके पास. Fine. Then which of the following has the initial value problem solution? अगर आपका F continuous है, what does means? There exists at least one solution. Fine. For all t in the domain. इसका मतलब एक solution तो मिलेगा ही मिलेगा. So has a solution defined for all t? Yes, is a correct answer. Now you have a unique solution or infinitely many solution. Can you say f is a form of x की पावर अल्फा? ये तो नहीं है ना आपके पास, तो आपको Lipschitz condition लगानी होगी. So because f is my bounded, f is my differentiable, that implies f satisfies my Lipschitz condition. If f satisfied my Lipschitz condition, that will give you my unique solution. So second is the right answer. Third option is the wrong answer. Look at the fourth option. The solution of the p is my this problem is a Lipschitz. So what is the solution? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज माय x. x है ना डिपेंडेंट, तो आपको ये दिखाना Lipschitz सेटिस्फाइड करता है कि नहीं. तो इसके लिए क्या प्रूफ करोगे? आपको ये प्रूफ करना वेदर इट इज लेस देन ऑफ द m और नॉट. फाइन. बाउंडेड तो दिखाना होता है ना Lipschitz में, तो करो x प्राइम. x प्राइम कितना आ गया? x प्राइम इज ऑलरेडी गिवन टू यू f, and f is given to be the bounded which is less than of the m. Yes, it satisfied my Lipschitz condition. So the right answers are a, b and d are my correct answers. Fine. चलिए एक और मेथड बताता हूं. फाइन.
आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लाइक दिस वे, अगर आपको लिप्सिस कंडीशन का कंसेप्ट एग्जाम में नहीं आया तो you can choose any function f which is a continuous, differentiable and bounded. Fine, you can choose any number like a constant. Fine, x is a continuous differentiable, x square is a continuous differentiable. Fine, sin x is a continuous differentiable and so on. But you can see x and x square is not a bounded on the r. r के ऊपर तो बाउंडेड नहीं है ना, तो चाहे तो फंक्शन कांस्टेंट लीजिए चाहे sin x लीजिए. तो द इजीएस्ट वे इज आई कैन चूज f इज माई 1. कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, बाउंडेड भी है. तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या होगी, x प्राइम इज माई 1. तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो x विल बी t प्लस c. अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, x नॉट इज इक्वल टू 0, you will get c is equal to 0. That means x is equal to t. What does it mean? It's a unique solution. That's a unique solution. Correct option is the wrong answer. Moreover, you can also say x prime is 1 because the right hand side is my constant, is a first order. Definitely you will get as the unique solution. Now ये लिप्सिस तो आपको वैसे करना होगा, x prime is my f is my bounded. Fine, चाहे आप constant लीजिए चाहे sin x लीजिए, all have a bounded by the 1. So that is also correct. Once we can get the solution, it is defined for all, is the right option. A, B and D are my correct answer of the problem. Chale, look at that. It's a July 2025. Again, you are talking about the ellipsis functions. So f, it is a 1 plus root of y positive. What is the y positive? It's a maximum of the y and 0. तो जब भी मैक्सिमम हो तो क्या करते हैं आप, दो केस बना लेते हो ना. तो y की डोमेन क्या आपकी -1 to 1. I can consider the two cases whenever y is lies between -1 to 0 and y is lies between 0 to 1. So whenever y is lies between -1 to 0, what is the maximum value of the y positive? 0. So 0 root is 0 is a 1. And whenever y is between the 0 and 1, maximum value is my y. So the answer is 1 plus root y. Now because equality is also be there, fine. Now check about the 0. So clearly say the function is continuous at the point 0. अगर function आपका continuous है तो what does it mean? There exists at least one solution. कम से कम एक solution तो मिलेगा ही मिलेगा ना. So that means has the no solution आपका cancel हो गया. Has at least one solution is the correct. ये दोनों ऑप्शन मैंने कैसे डिस्कार्ड कर दिए, by using the existence theorem. क्लियर. अब आपकी बात रह गई लिप्सिस कंडीशन की, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कर दो. डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ना आपका, सो वाई के साथ ये तो 0 जाएगा, दैट विल बी 1 over 2 root वाई ऑन द डोमेन डी. डी के अंदर 0 भी है. क्लियरली से इट गोस टू द इंफिनिटी एज वाई अप्रोचेस इंफिनिटी. दैट मींस लिप्सिस कंडीशन नॉट satisfied. So first option cancel, second and the third are my right answer. तो कितने सेकंड लगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज अभी तो मैंने आपके लिए लिखा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जब आप एग्जामिनेशन में होंगे, यू कैन नेवर एक्सप्लेन टू एनीवन, यू कैन राइट इट डायरेक्टली. फाइन, चेक इज अ कंटिन्यूअस, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. लिप्सिस कंडीशन यू कैन ऑरली डू दैट. फाइन, दैट मींस दिस इज अ नॉट सेटिस्फाइड लिप्सिस कंडीशन. चलिए लुक एट दिस वन अगेन. द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है एंड एट मोस्ट वन सॉल्यूशन. सो पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं. y प्राइम इज y cos of 1 over y. At most one solution. पहले तो चेक कर लो, is it a continuous? Yes, this function is my continuous. क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने इस लेक्चर में कंटिन्यूटी में, रिलेटेड द कोसाइन एंड साइन. अगर आपके पास कोई फंक्शन हो x की पावर m साइन 1 over x की पावर n और x की पावर m cos 1 over x की पावर n, the function is said to be the continuous whenever m and n both are my positive. तो यहां देखो दोनों पॉजिटिव हैं, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. व्हाई? बिकॉज ये डिफरेंशिएबल कब होता है, whenever m is strictly greater than of the n. पर यहां पे देखो 1 is not greater than 1. तो f is my continuous. अगर continuous है दैट मींस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. फाइन, तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा आपका पास. क्लियर. अब आपके पास सेकंड कैसे सॉल्व करोगे? अब एटमोस्ट बोला है आपके पास.
फाइन, अगर आप लिपस्टिस कंडीशन लगाने की कोशिश करोगे तो लगाते हैं, चलिए लिपस्टिस कंडीशन लगाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ करेंगे 1 इंटू कॉस 1/y प्लस y इंटू साइन into -1/y square. Clearly say as this limit does not exist, so that means this will goes to the limit does not exist, so we can't say anything. फाइन, लिपस्टिस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब मेरी एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखिए बच्चों, याद रखो, मैं बड़ी ही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देने जा रहा हूं। फाइन, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड होती जाएगी। आपके पास f क्या है, y cos 1/y. We all knows what is the bound of the cos, -1 to 1. Fine. If I multiply both sides by y, that becomes f. F is nothing but my y prime is less than equal to 1. ये हो गया ना? That means your target is to create the lower and the upper bound of the given problem. Clear? अब आप देखो y of 0 is my 0. क्लियर? अब यहां पे आप वो अप्रोच नहीं लगा सकते, फाइन, बिकॉज अल्फा कहां होना चाहिए आपका, ओपन इंटरवल 0 1, लेकिन यहाँ पे +1 है आपके पास। क्लियर? तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखिए, क्या इसको सॉल्व करके आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। क्या होगा वो यूनिक सोल्यूशन, e⁻x। फाइन, और इधर से सॉल्व करोगे तब भी आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। फाइन, तो वो क्या होगा, e⁻−x। तो इसका मतलब आपको दोनों तरफ से यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। फाइन, कोई भी दोनों में से, क्या दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट ब्लो अप हुआ? ब्लो अप का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी को रीच हुआ? नहीं हुआ। दोनों तरफ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो वंस यू कैन गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, यस यू विल गेट एज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एज वेल। फाइन, ये बच्चों आपको हमेशा बाउंड्स निकालने हैं। Once you are able to find the bound, you can get the answer in a simple manner. अगर आप बाउंड्स निकाल पाए किसी प्रॉब्लम में, तो बाउंड्स कैसे निकाल पाते हो, तभी निकाल पाओगे ना जब साइन एंड कोसाइन होगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन, z प्राइम 1 माइनस z की पावर 4 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z स्क्वायर। अब आप देखो इसका बाउंड नहीं निकाल सकते, आप एग्जैक्टली बाउंड नहीं निकाल सकते, तो इसको देखते हैं। द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, दैट मीन्स z प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, implies z is my increasing function. Fine. अब आप इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लो। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है, z प्राइम इज 0 कब होगा, whenever z is my +-1। अब आप ग्राफ बना लो, हमेशा ग्राफ बना लो बच्चों आप, दिस इज x, दिस इज z। फाइन, x z is my +1, z is my -1। Fine, and we already proved that z is my increasing. What is the value of this z0? Okay, z0 is not given to, तो अगर -∞ पे इस पॉजिटिव नंबर, तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही चलेगा ना, इसे इंक्रीजिंग। फाइन, ये 1 को टच करेगा कि नहीं करेगा? फाइन, अब उसकी भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स दे देता हूं, यही रहेगा ना क्वेश्चन। अब मैं उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यहां देता हूं। पहले जो भी आपके पास गिवन फंक्शन हो, जो भी गिवन फंक्शन लाइक ऑफ दिस z प्राइम, इसको आप एनी कांस्टेंट जिसके अराउंड निकालना चाहते हो आप, पहले मैं यहां देखना चाह रहा हूं 1 के अराउंड। फाइन, तो इस फंक्शन को आप 1 माइनस जेड और a टाइम्स ऑफ z माइनस 1 की फॉर्म में लिख लो, जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है। फाइन, तो आप देखो आपके पास गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन आपके पास ये, इसमें से क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस जेड की पावर स्क्वायर 1 प्लस, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे आप एग्जाम में लिख देते सीधा। फाइन, अब इसमें होगा ना 1 माइनस जेड, तो मैं क्या लिख सकता हूं, z प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू बाकी जो रह गया एट z इज इक्वल टू 1, जो बाकी जो रह जाएगा ये बचा ना, इसके बिना जो बाकी रह गया उस पॉइंट पे तो सारी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी। फाइन, सो आई कॉल दैट नंबर इज माई a। क्लियर, अब आप देखो ये a हो गया आपके पास, अब ये इसको मैं लिख देता हूं लेस देन ऑफ। क्लियर, अब आप ये चीज चेक करो, आप ऐसे तो होगा ना इसका नीचे। फाइन, इनिशियल लिमिट कितनी है आपकी, इनिशियल कुछ भी हो, लेट्स से a टू इंफिनिटी, अगर तो ये वैल्यू इंफिनिटी चली गई आफ्टर द इंटीग्रेशन, इफ दिस नंबर गोज टू द इंफिनिटी, दैट मींस जो भी इसका सॉल्यूशन है दैट अप्रोचेस किस पॉइंट पे, 1 पे,
एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब आप ये जाएगा भी इन्फिनिटी पे, बिकॉज ऊपर जाके -99 से फिर ये इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब जैसे ही आपने x को इन्फिनिटी करा, whenever you reach the x infinity, तो आपका सोल्यूशन टेंड्स टू 1 होगा, एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। फाइन, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट्स अ बाउंडेड। फाइन, तो इसका मतलब z आपके पास क्या हो गया, बाउंडेड। फाइन, अब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर अल्फा आपका 0 और 2 के बीच में है, 1 माइनस अल्फा कहां लाई करेगा, -1 to 1। तो देखो z इज दिस द वैल्यू ऑफ द z इज माई बाउंडेड, और x की कोई मर्जी वैल्यू ले लो, हर एक वैल्यू के ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा जो 0 +1 और -1 के बीच में है। यस, दिस इज ऑल्सो माई करेक्ट स्टेटमेंट। सो बोथ p and q आर माई ट्रू स्टेटमेंट, आर द राइट आंसर। फाइन, दो ही मेथड है बच्चों। अगर तो आप लिपस्टिस कंडीशन आपकी नहीं सेटिस्फाइड हो रही, देन यू कैन टेकन एज ए लोअर एंड अपर बाउंड। फाइन, चेक अबाउट द यूनिकनेस। और अगर आप यूनिकनेस लिमिट्स नहीं बना पा रहे, देन यू कैन फाइंड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बहुत सारे एग्जांपल और करता हूं आपके लिए। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हैज ए टेलर सीरीज सॉल्यूशन, हैज ए टेलर सीरीज सॉल्यूशन। स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपसे इन्होंने कहा है कि यू हैव टू सॉल्व दी सॉल्यूशन? क्या आपको सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला इन्होंने? नो, दे आर सिंपली आस्किंग यू वेदर द टेलर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। यही तो पूछा ना आपसे। तो क्या कंडीशन होती है टेलर सीरीज की? पहले तो ये बताइए टेलर सीरीज कब एप्लीकेबल होता है। अगर आपको याद हो, फोरियर सीरीज, टेलर सीरीज, पावर सीरीज, सभी में डिफरेंस होता है ना। फोरियर सीरीज कब करते हैं? जब हम किसी भी फंक्शन को यस पीरियोडिक फंक्शन में लिखना चाहते हो। टेलर सीरीज कब यूज करते हैं? जब हम इसको पावर सीरीज में लिखना चाहते हो। बट उसकी कंडीशन क्या होती है? फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो यही तो आपको चेक करना है। फाइन, इसके जो भी पैरामीटर्स आपके पास हैं, y का कोफिशिएंट क्या है? 1, और दूसरा क्या आपके पास? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने ये प्रूव कर दिया बोथ आर माई कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, that implies Taylor series exists. Fine. So 1 तो is a continuous, 1 is a differentiable, there is no issue. E की power minus x square is a continuous. Fine. Now whether it's a differentiable or not, you can find the derivative. Fine. And clearly say at the breaking point x equal to 0, that value will go to the 0, which is a finite. अगर ये finite है, that means yes, it is a differentiable as well. Once both the functions are differentiable, yes, p you can write as a Taylor series. So p is my false, that's a wrong statement. Now look at the second part. Again in this case coefficient is my 1, this is also the 1. एक 1 लेना है और एक rx will be e की power minus x square. So clearly say 1 is my continuous, 1 is my differentiable. E raised to power minus 1 over x square is a continuous. You can check about the limit. As x approaches 0, that will be e की power minus 1 over 0, which is e की power minus infinity, which is my 0. Yes, it is my continuous. Is it a differentiable? Clearly say no. Why? Because if you take the derivative, it will be 2 over x cube, and clearly say as x approaches 0, that will goes to the infinity. Therefore, the function is not differentiable. Once the function is not differentiable, you are not able to write in terms of the Taylor series. So Q is my wrong statement about the point 0. So Q is true, Q is false. So that is a 1 and 4 are my right answer of the problem. Is it okay? Chaliye, look at that. Consider the non-homogeneous ordinary differential equations. Which of the following statements are my true? Every solution is bounded, unbounded, bounded, unbounded. चलिए एक चीज बताइए बच्चों, आपके दिमाग में क्या आता है? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। फाइन, सो दैट मैं भी समझ पाऊं ना कि आप कहां तक सोच पा रहे हो। क्योंकि अगर आज मेरा आप लेक्चर देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो, एक लेक्चर आपने सुना जरूर होगा, जिससे इस क्वेश्चन को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। कमेंट करके बताइए, फिर मैं समझता हूं कि आप कितने पेशेंस से लेक्चर सुनते हो। कुछ हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अगर एक्स ये हो और बाउंडेड और अनबाउंडेड के बारे में पूछा गया हो आपसे,
क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको? स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। हैव यू वॉच माय स्टडी स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर? बच्चों ये भी आपका लास्ट मिनट रिवीजन ही है। देखिए मस्त लेक्चर, देखिए एक बार स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। तो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन में क्या था? कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं, फाइन। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। e की पावर -5x, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन का मतलब x अप्रोचेस इंफिनिटी। तो जैसे ही x अप्रोचेस इंफिनिटी हुआ दैट विल बी जीरो। क्या रूल बताया था मैंने आपको? साइन x को आप क्या लिख सकते हो? x ओनली, ओनली जब आपका ये वाला x किसको जा रहा हो? जीरो को, और ये ऑलरेडी जीरो को जा रहा है आपके पास, फाइन। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6y इज e की पावर -5x लिख सकता हूं, फाइन। मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन एट द पॉइंट x इक्वल 1 क्या होगा। हर ऑप्शन में आपको इंफिनिटी की बात हो रही है, हर ऑप्शन में इंफिनिटी बात हो रही है। तो जब इंफिनिटी की बात हो रही है दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। तो निकाल दो इसका सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दो, 3 एंड माइनस, सो इट्स अ -3x और 2 माइनस ऑफ, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे सो दैट विल बी 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 e की पावर -5x। 5 फिल कर दो, 25 25 0, 6 e की पावर -5x। एक और तरीका भी बताऊंगा इसके बाद। नाउ यू कैन टेकन एज x अप्रोचेस इंफिनिटी। जैसे x अप्रोचेस इंफिनिटी लोगे तो y ये भी जीरो जीरो जीरो, y अप्रोचेस जीरो, सो दैट मींस एवरी सॉल्यूशन टेंड्स टू जीरो एज x अप्रोचेस इंफिनिटी। जैसे ही जीरो पे गया दैट मींस दिस इज माय बाउंडेड। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एवरी सॉल्यूशन इज माय अनबाउंडेड, कैंसल आउट। There exists a solution which is unbounded on the interval 0, infinity. इंफिनिटी पे आ गया ना आपका, जब आपके पास y अप्रोचेस जीरो पे ही जा रहा है एंड दे आर डिक्रीजिंग, फाइन। तो ये डिक्रीजिंग भी है और इंफिनिटी पे आपके पास जाके जीरो बन जाएगा, तो इट कैन नेवर बी अनबाउंडेड। एवरी सॉल्यूशन इज माय बाउंडेड इज द करेक्ट आंसर। सो A and D are my right answer of the problem. Is it fine? सेकेंड मेथड, इसको तो फिर भी आपने थोड़ा सा समय ले लिया, फाइन। सेकेंड मेथड करता हूं आपके लिए स्टडी स्टेट कंसेप्ट के साथ, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लास्ट मिनट रिवीजन। इस लेक्चर को सुन लीजिए, आपके सारे डाउट स्टडी स्टेट पे क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? यू कैन टेकन x अप्रोचेस इंफिनिटी, फाइन। तो y प्राइम आपका जीरो को चला जाएगा, y डबल प्राइम आपका जीरो को चला जाएगा। फिल कर दो, जीरो जीरो 6y, ये आपका कहां चला गया? e की पावर that will goes to the zero, sign of zero will be zero, that means y will approaches to the zero as x approaches infinity. So clearly say the last option is the correct option, as is unbounded wrong option, is a wrong option, is a, again A and D are the right answer within the 1 second time period. और आप बिलीव नहीं करोगे, इसे 2025 रिसेंट ईयर पेपर और आप मेरा ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, क्या आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज हो रहा है? जितने भी अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, क्या आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज हुआ? अगर हुआ है तो कमेंट करिए जरूर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर माय ट्रू, अनबाउंडेड, बाउंडेड, बाउंडेड एंड फॉर ऑल आर। तो स्टडी स्टेट कंसेप्ट लगा दें, फाइन। बट जैसी स्टडी स्टेट लगाओगे पर लेकिन फॉर एवरी वाई नॉट बोला है, या क्वेश्चन पे इसके ऊपर पूछा आपसे, यहां नहीं पूछा, फाइन। सॉल्यूशन में आपको वाई नॉट पूछा ना आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वही वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। बाउंडेड अनबाउंडेड पूछा तो लिप्सिस कंडीशन लगाए पहले, और लिप्सिस नहीं लगाना तो बाउंड लगा देते हैं। साइन की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 1 से -1 में आई कैन मल्टीप्लाई 1 plus y4 which is always a positive number, so that means 1 plus y की पावर 4 is less than equal to y prime is less than equal to 1 plus y की पावर 4। यही आएगा ना? अब क्या इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे, कैन यू गेट द यूनिक सॉल्यूशन? ऑफ कोर्स यू कैन। ये तो बनेगा ना आपके पास सॉल्यूशन, dy is equal to dx only on the right hand side, so that will be y plus y5 over 5 which is x plus constant। तो फॉर द y, x तो जीरो है तो आपका c कितना हो जाएगा? y नॉट
प्लस वाई नॉट 5/5, दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये वाला पार्ट आपको क्या दे रहा है? यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल ऑल्सो गिव यू द यूनिक सोल्यूशन। Fine. So when y give the unique solution, that means this differential equation will give the unique solution for all those values of the y naught. Clear? अब जैसे ये y naught solution देगा, so there is a solution for all x and for every y naught. Yes, it's a correct statement. Fine. For every y naught, the solution is my bounded. अब आप bounded कैसे चेक करोगे? Take x approaches infinity. Fine. For every y naught, the solution is my bounded. तो कैसे चेक करोगे आप बाउंडेड को? तो सोल्यूशन का मतलब y को दिखाना आपको। फाइन, तो बाउंडेड कैसे दिखाओगे आप इसे? इसका मॉडुलस ले ले। फाइन, so that will be less than equal to 1/1 plus y4, which clearly says whenever y approaches infinity, that will goes to the 0. Fine. Or any other way? सोल्यूशन अराउंड द जीरो निकालना है। अच्छा, अभी बाउंडेड इसमें नहीं क्लियर हो पा रहा ना, तो ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया। चलिए इसका इक्विवेलेंट पॉइंट निकाल देते हैं। दूसरा मेथड बताया था ना, y प्राइम को जीरो करो, तो ये कब जीरो होगा आपके पास? whenever sin of y will be 0. sin of y will be 0 only when y is equal to n pi. Fine, where n is my integer. Now near to the origin, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन तो बनेगा ना, नियर टू द ओरिजिन। y is equal to, बाकी तो क्या मिलेंगे आपको? 0, बाकी पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई, और ये आपके पास क्या है? इज अ बाउंडेड, so that means y is equal to 0 is the only unique solution. So it's a existence for all, so it's a unbounded. There is a negative y naught, solution is bounded because we have proved that its existence for all y naught and bounded. Fine, so for all y naught, so B, C and D are my right answer of the problem. Clear? Because आपने दोनों तरफ से देख लिया ना, लोअर बाउंड से भी देख लिया और अपर बाउंड से भी देख लिया। एक तो ये बताया था ना मैंने पहले, यहां से आपको क्या मिल गया, मैं रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए। फ्रॉम हियर यू कैन गेट एज द यूनिक सॉल्यूशन। फाइन, बिकॉज लोअर लिमिट्स, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोथ विल गिव यू द यूनिक सॉल्यूशन। तो इससे तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बाउंडेड के लिए चेक करना आपको पास, इससे नहीं निकाल पा रहे आप अगर, fine, then you can get as the equivalent point, you can get as a y is equal to 0. This is my y0, y is equal to pi, y is equal to minus pi, but आपको solution around the y naught पूछा है, x is equal to 0, तो around the x naught, fine, जो भी आपका solution है that is my bounded, therefore is a bounded for all y naught. So the right answer is B, C, D are the correct answer. Chलिए look at the next one. Consider the initial value problem. There exist the solutions y naught and monotonic. Again it's a initial value problem. साइन कोसाइन दिया हुआ है, फिर से मैं बाउंड बना लूं इसके। इट इज ऑलवेज लेस देन, बिटवीन मॉडल्स की वजह से जीरो आ जाएगा। फाइन, आई कैन ऐड हाफ, y प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y ऐड कर देते हैं, सो दैट विल बी y, इट इज y प्राइम इज लेस देन ऑफ द y प्लस हाफ। क्लियर? तो यहां से क्या मिला आपको? एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यस, यहां से भी आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। फाइन, so you will get y as a unique solution. फाइन, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन की बात, so that is a y exist. फाइन, तो y exist करेगा, डोमेन आपकी क्या होगी? 0 to infinity. y exist, y exist, y exist. फाइन, अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या होगा? y of 0 is my -1, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, y is equal to e की पावर x, कांस्टेंट c, and y of 0, so that is a minus e की पावर x, and y प्राइम, इसको सॉल्व कर देता हूं, ये बनी ना आपके पास, तो इसको ऑक्सिलरी कंप्लीमेंट्री फंक्शन और ऑक्सिलरी से सॉल्व कर दे। m is 1, तो c1 e की पावर x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको e की पावर 0x लिख लेते हैं, so that is a minus half, and y of 0 is my -1, so that is a -1 plus half is equal to c1, so it's a minus half. तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया? इस y is less than of minus half e की पावर x, और माइनस माइनस कॉमन,
सो +1, ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन मिल गया आपको। अब आप चेक करते हैं वेदर इज द मोनोटोनिक बाउंडेड। सो पहले बाउंडेड चेक कर लेते हैं। बाउंडेड कैसे चेक करते हैं? यू कैन टेक एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, दैट वैल्यू गोस टू द माइनस इंफिनिटी इज अ लिमिट ऑफ द y एंड दैट इज माई माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया? आई कैन राइट फॉर यू, दैट मीन्स लिमिट y as x approaches infinity is my minus infinity। फाइन, तो इसका मतलब जैसे आपका y का होगा तो माइनस नीचे की तरफ जाएगा आपके पास, और इज अ बाउंडेड। सो जब जैसे ही आपके पास माइनस इंफिनिटी हुआ, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इज नॉट बाउंडेड, यस, नॉट बाउंडेड बिलो। फाइन, इसे नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब कुछ ऐसा आएगा ना लिमिट आपकी। अब ये ऊपर वाली लिमिट देख लेते हैं क्या आएगी। तो इट्स नॉट बाउंडेड बिलो, सो नॉट बाउंडेड बिलो, करेक्ट आंसर। अब बाउंडेड अबव देखना है आपके पास, इनिशियल पॉइंट क्या आपके पास? 0। फाइन, तो आप 0 पे लिमिट लगा लो। तो जैसे ही आप 0 पे लगाओगे लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा? 1 -1, 0 अगेन 1, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये आपकी अपर लिमिट क्या होगी? -1। फाइन, तो आपके पास बाउंड्स के आगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1, तो ये -1 की वजह से क्या मतलब है? इट्स बाउंडेड अबव, पर यहां पे क्या कह रहा है? नॉट बाउंडेड अबव, दैट्स द रॉन्ग आंसर। क्लियर? एक्स की वैल्यू 0 से जैसे ही पॉजिटिव लोगे, 0 पे वैल्यू -1 है, उसके बाद ग्राफ आपका नीचे को डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वेदर इज मोनोटोनिक और नॉट, सो क्लियरली से, चाहे तो आप ये सोल्यूशन ले लो और चाहे आप ये सोल्यूशन ले लो, बोथ यू कैन सी इट्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो यस इट्स अ मोनोटोनिक फंक्शन। नाउ यू कैन सी द सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। सोल्यूशन आपके पास बना है y इज इक्वल टू e की पावर -x और -12 e की पावर x + 1। क्या ये इंफिनिटी को जाएगा? व्हेनेवर, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, व्हेनेवर लिमिट x अप्रोचेस अल्फा नेगेटिव, और अल्फा आपके पास क्या कह रहा है? 0 से इंफिनिटी के बीच में। इसका मतलब अल्फा नेगेटिव है, दैट मींस इंफिनिटी नेगेटिव। इंफिनिटी नेगेटिव का मतलब इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो जब इंफिनिटी नहीं होगा, दैट मींस दिस नंबर विल गिव यू द फाइनाइट, fine, and that number will also give you a finite, and whenever you will get the finite, can you get as the infinity? No, so the right answer is B and C are my right answer of the problem। यहाँ पे बच्चों ये नेगेटिव ने सारा काम खराब कर दिया आपके लिए। फाइन, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा होता, सिंपल अल्फा लिखा होता, फाइन, और अल्फा इसके बीच में है, तब तो इंफिनिटी चला जाएगा ना, whenever x approaches to the infinity। क्लियर? बिकॉज देखो, आपको पता है लिमिट दो तरह से निकाली जाती है ना, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, x अप्रोचेस इंफिनिटी माइनस और x अप्रोचेस इंफिनिटी प्लस। फाइन, इस पे तो आपके पास फाइनाइट लिमिट आ जाएगी, लेकिन इस पे आपकी लिमिट फाइनाइट नहीं आएगी, पर यहाँ तो माइनस भी पूछा है, तो दैट गिव्स द फाइनाइट लिमिट, तो फाइनाइट लिमिट पे आपके पास आंसर नहीं होगा। सो बी एंड सी आर दी राइट आंसर्स। तो फॉर मोर डिटेल्स, बिकॉज मैंने कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर सकता हूँ टाइम लिमिट के हिसाब से, यू कैन वॉच अबाउट माई दिस लेक्चर यूनिकनेस theory lecture of the 15 plus example of the Lipschitz and the existence theorem, और study state का lecture देखना मत भूलना, this is very beneficial for all of you। Now the third concept which is related to the initial value problem is maximum interval of the existence। मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि किस इंटरवल के बीच में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फाइन, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन इज माय बाउंडेड, function is my continuous and the function is my differentiable, then the maximum interval of existence is always r। fine, और एक और टिप्स मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, the maximum interval of the existence is either r, या तो r होगा, और the open interval alpha comma beta, either the r, अगर r नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा ऑलवेज, और r कब होगा? व्हेनेवर इज अ बाउंडेड एंड अ कंटीन्यूअस डिफरेंशियल, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लाइक अगर मैं आपके पास ये कह दूं dy/dx which is equal to sin x, फाइन, तो क्लियरली से f is my bounded, f is my differentiable, f is my continuous,
तो इसका जो भी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आएगा दैट इज ऑलवेज माई आर। चलिए, एंड अगर आपको लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द लार्जेस्ट। जब भी लार्जेस्ट निकालना है यू हैव टू अप्लाई द पिकार्ड्स थ्योरम। पिकार्ड्स थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है मैंने, h इज ऑलवेज बी द मिनिमम ऑफ a एंड b बाय m। फाइन, लेकिन जब आपको मैक्सिमम निकालना है यू कैन अप्लाई द बाउंडेड एंड द कंटिन्यूअस डिफरेंशियल। तो लुक एट दैट, f is my locally Lipschitz function. What is the meaning of the local Lipschitz function? Is that is a local unique solution exist. ग्लोबल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, बट लोकल एग्जिस्ट करेगा, दैट्स ट्रू। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, j represents my maximal, लार्जेस्ट नहीं बोला, मैक्सिमम बोला है। which of the following statement is my true? which of the following is true? इसका मतलब दैट इज द पार्ट बी। तो अगर पार्ट बी है तो मैं एक लाइन में कैंसिल कर सकता हूं इसे, बिकॉज मैंने आपको क्या टिप्स दिया था, द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ द एग्जिस्टेंस इज ईदर आर और ओपन इंटरवल। फाइन, अगर मान लो कि अगर ये आपका आर है, दैट मीन्स अगर ये पहला ऑप्शन करेक्ट है मान लो, एंड वी ऑल नोस आर इज ऑल्सो द ओपन सेट, तो आपका ये भी सेट हो जाएगा। आर इज ऑल्सो द क्लोज सेट, तो ये भी आपका पास हो जाएगा। फाइन, बट क्योंकि ये एक ही ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ये आपके पास पहला ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं होगा, बिकॉज अगर पहला ऑप्शन सही हो गया देन ऑल द अदर ऑप्शंस आर आल्सो करेक्ट। सो वंस इट इज नॉट द आर, अगर आर नहीं है देन इट इज ऑलवेज बी द ओपन इंटरवल, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। फाइन, लास्ट इज कुड बी एन एम्प्टी सेट, you can see it's a local solution. So once is a unique local unique solution, that means solution existence and it cannot be negative, it can't be empty, because इसका local solution तो मिलेगा ही मिलेगा ना, so it can never be empty। यहाँ बोला could be empty, तो could not be cancel, so the right answer is B is the right answer। Fine, ये तो था अगर आपके पास पार्ट बी का है, तो then you can write सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो बेस्ड ऑन दी आर। नाउ अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन होता, फाइन, देन हाउ यू कैन थिंक अबाउट दैट, बिकॉज पार्ट सी में तो पहले ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, बिकॉज लोकल यूनिक इंप्लाइज इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कांट बी एम्प्टी। नाउ हाउ यू कैन थिंक अबाउट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यू कैन सी यू कैन चूज एनी फंक्शन, एफ इज अ लोकली फंक्शन, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। फाइन, लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, dx over dt which is equal to x square। इसको सॉल्यूशन निकाल दो, -1 over x which is equal to t plus c। और एक इनिशियल कंडीशन भी अपनी तरफ से ले लेते हैं, लेट्स से x of t 0 ले लेते हैं, और यहाँ नॉन जीरो ले लें, कोई भी नॉन जीरो ले लो, लेट्स से 1। फाइन, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, -1 which is equal to c, c will be -1, so 1 over x which is t -1, it implies x will be 1 over 1 minus t, यही आएगा। तो what does it meaning? That means the solution is blow up at t is equal to 1। अगर blow up है तो इसका solution कितना होगा मैक्सिमम, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 0, फाइन, और इसका 1 तक बीच, इस इंटरवल के बीच में इसका सॉल्यूशन जो है वो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। बट यहां तो r कह रहा है, सो r इज कैंसल, जैसे r कैंसिल हुआ इट कैन नेवर बी द क्लोज्ड, so the right option is B is the correct answer। अगर आपकी डोमेन जो है वो पूरी R है, then instead of taken as a 0 you can taken as a minus infinity। Fine, चलिए look at the next one, let B is belongs to the R, Y is the solution of the initial and some maximum interval of existence is RB IB, which of the following statement is my true? There exists alpha bounded above, bounded below, bounded above, bounded below। फिर से यार ये तो मजाक हो गया, बाउंडेड के लिए क्या रूल बताया मैंने आपको, फाइन, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी, और जैसी एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी है यू कैन अप्लाई द स्टडी स्टेट। फाइन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, वॉच माय दिस लेक्चर, स्टडी स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट। कर देते हैं सॉल्व, तो पहले ऑप्शन को लेकर स्टार्ट करता हूं मैं। देयर एग्जिस्ट बोला है आपको, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल के लिए नहीं प्रूव करना, तो काफी आसान है, alpha greater than 0 such that for every b in the real
b is my greater than alpha, so that means b is my greater than 0. फाइन, तो कोई भी एक नंबर ले लो. सो लेट्स से b इज माई, स्टडी स्टेट लगाने के लिए b इज माई वेरी वेरी लार्ज नंबर. फाइन, लाइक ऑफ द इंफिनिटी. तो जैसे b मेरा लार्ज इंफिनिटी हुआ, दैट मीन्स y इज माई वेरी वेरी लार्ज नंबर. फाइन, अगर y मेरा वेरी वेरी लार्ज नंबर हुआ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग dy ओवर dx ये सब जीरो हो जाएंगे ना, बिकॉज डोमिनेट कर जाएगा. दैट विल ऑलमोस्ट बी द y की पावर 5, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर माई डोमिनेट. y की पावर 5 डोमिनेट कर देगा ना. जैसे y मान लो आपने ले लिया, इतना नंबर ले लिया, तो ये 1 तो डोमिनेट कर जाएगा. y की पावर 5 उतनी जीरो और बढ़ जाएंगी, तो y की पावर 5 इज इक्वल टू ये हो गया. अब आप ये बताइए, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो, दैट इज अ y अप्रोचेस इंफिनिटी, दैट विल गोस टू द इंफिनिटी. तो अब इसका ग्राफ बना लो. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज आपका कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है y का. और b आपका क्या है, पॉजिटिव, तो इनिशियल वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है ना, कोई भी एक नंबर पॉजिटिव. फाइन, और चाहे तो ये ग्राफ हो सकता है, और अदरवाइज मैं यहां बना दे रहा हूं आपको, दो ग्राफ हो सकते हैं. या तो b की वैल्यू पॉजिटिव है, उसके बेस पे ऐसे जाएगा सोल्यूशन, और अगर जीरोस के अराउंड है तो या ऐसे जाएगा. इन दोनों केसेस में तो क्या मिला आपके पास, इफ यू लुक अबाउट दैट, इट इज, यस इट्स अ बाउंडेड अबव है आपके पास, इट्स अनबाउंडेड अबव, लेकिन नीचे से तो बाउंडेड हो जाएगा ना एट द इनिशियल पॉइंट पे. सो दैट इज अ बाउंडेड बिलो. फाइन, तो जैसे ही इसका मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव है, यू विल गेट अ बाउंडेड बिलो. सो दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन बाउंडेड अबव इज द रॉन्ग आंसर. क्लियर. नाउ लुक एट द सेकंड ऑप्शन. बच्चों मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, जब भी बाउंडेड कहा जाए तो लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब है स्टडी स्टेट. अल्फा इज माई लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू जीरो, b is my less than of alpha, that is less than 0. What does it means? I can choose b is approximately the minus infinity, that's a very very small largest number. Fine, तो आपके पास dy over dx फिर से y की पावर 5 हो जाएगी, दैट इज, बट इट इज लेस देन ऑफ द 0. जैसे लेस देन 0 हुआ, अब आपका ग्राफ इधर बना लेते हैं इसके लिए. y ऑफ 0 इज नेगेटिव, तो इसका यहां से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ आपका इस इनिशियल पॉइंट से आपका नीचे को जाएगा. फाइन, और जैसे ये पॉइंट नीचे को गया, व्हाट डज इट मींस, इट इज बाउंडेड अबव, तो हो गया बाउंडेड ये आपका, बट इट इज अनबाउंडेड बिलो, बिकॉज इसकी लिमिट कुछ ऐसी आएगी ना, माइनस इंफिनिटी y, और यहां तो फाइनाइट आ जाएगा ना जो भी आपके पास b है. फाइन, दिस इज लेस देन 0. फाइन, तो ये बाउंडेड अबव तो है लेकिन बिलो नहीं है, तो बाउंडेड बिलो इज अ रॉन्ग आंसर, बाउंडेड अबव इज द करेक्ट आंसर. सो b and c आर द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन, समझे. आप कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर आप जब करवाते हैं हमसे हो जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो नहीं होता. उसका रीजन भी मैं बता देता हूं. मैं ऑलरेडी आपको इन वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाउ यू कैन अटेम्प्ट, हाउ यू कैन क्वालिफाई दैट. क्या रीजन बताया था कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स की एक्सपेक्टेशन लगाते हो. फाइन, और जब आप सॉल्व करने बैठते हो इस क्वेश्चन को, तो कितने लोगों ने इस शॉर्टकट ट्रिक्स और स्टडी स्टेट सोल्यूशन का शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करा. ये शॉर्टकट ट्रिक्स ही तो लगा रहा हूं ना मैं हर. तो जब आप प्रैक्टिस करते हो अपने रूम पे, तो क्या आप भी इसी तरह से सॉल्व करते हो. आपको सोचना वही है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड का मतलब है स्टडी स्टेट लगाओ, आंख बंद करके लगाओ, कोई ना कोई ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होगा ही होगा. फाइन, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे इजिली विद माय अप्रोच. आप क्या करते हो, शॉर्टकट ट्रिक्स मेरी सीख लेते हो, प्रैक्टिस करते हो आप लॉन्ग मेथड से. तो जब प्रैक्टिस लॉन्ग करोगे तो एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक्स काम नहीं आएगी. कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस के लिए आप, मैंने बनाई थी ना ये वीडियो आपके लिए, सुनो हाउ यू कैन अटेम्प्ट दैट. इसमें मैंने यही बताया था कि पहला मार्क्स आपको सिर्फ नंबर नहीं देता, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस देता है आपको वो भी. क्लियर. चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन. वाई प्राइम दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस पूछा आपसे. फिर से क्या दिक्कत है इसमें, ये कर लोगे अपने आप. चलिए मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड, सोचो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे निकालोगे, और फिर मैं अपनी अप्रोच देता हूं, फिर आप बताना क्या आपने भी उसी अप्रोच से सॉल्व करा.
मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए क्या बताया था मैंने आपको, अभी तो बताया बच्चों, एफ को अगर आपने बाउंडेड, एफ को अगर आपने कंटिन्यूस और एफ को अगर आपने डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दिया तो इसका मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कितना आएगा, आर। देखो अभी आप नहीं ना सोच पाए, क्यों, मैंने अभी तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दी है, आप शॉर्टकट ट्रिक्स ले तो ले रहे हो लेकिन सोच नहीं पा रहे उससे। अरे भाई सोचो, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, यही चेक करो। एफ आपका क्या है, 1 माइनस 10 की पावर कोस वाई, तो क्लियरली से polynomial trigonometry is a continuous, polynomial trigonometry is also the differentiable, because of the cosine function is a bounded as well। तो जब आपका फंक्शन बाउंडेड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कितना हो गया, आर, तो जे इज माई आर। फाइन, अगर तो ये आर नहीं होता देन इट मस्ट बी द ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पे आर ही आ गया तो -1,1 आपका कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या रह गया, रेंज निकालनी। फाइन, तो रेंज में क्या दिक्कत है, सोचिए पहले रेंज कैसे निकलेगी। रेंज मतलब इसकी निकालनी ना आपको, इक्विवेलेंट पॉइंट निकाल दो, क्या है इक्विवेलेंट पॉइंट, कैसे निकलेगा, y प्राइम इज जीरो, y प्राइम जीरो का मतलब y इज इक्वल टू +-1। तो जैसे +-1 आया, फिर से मैं वही शॉर्टकट ट्रिक्स अपना रहा हूँ। इक्विवेलेंट पॉइंट के केस में क्या थी, आपको क्या लिखना है, y प्राइम को जिसके अराउंड निकालना है उसके टर्म के साथ, तो यहाँ पे मैंने 1 के साथ निकालेंगे, एक बार 1 + y के साथ और एक बार 1 - y के साथ। अब आप देखो, चले निकालता मैं पहले 1 + y, तो y प्राइम को क्या लिख सकता हूं मैं, सिर्फ 1 + y लिख देता हूँ रेज़्ड टू पावर 10। फाइन, और साथ में कोई भी एक कांस्टेंट है। फाइन, और इसको इंस्टेड ऑफ दी अल्फा कांस्टेंट के साथ इसको लेस देन लिख देता हूं। तो क्या चेक करें हम, 1 + y की पावर 10, इनिशियल पॉइंट आपको 0 दे रखा है, 0 टू इंफिनिटी। क्या बताया मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर तो ये इंफिनिटी चली गई, व्हाट डज इट मींस, जो भी इसका सॉल्यूशन है, फाइन, वो अप्रोच करेगा किस पॉइंट को, 1 को, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। यही तो बताया ना मैंने पीछे, कौन सा क्वेश्चन था वो आपके लिए, दोबारा सुनो, बैक वापिस जाओ, यही था क्वेश्चन, नहीं, ये वाला था ना, देखो यहीं पे एक्सप्लेन करा था, अच्छा ये तो रब हो गया, यही तो बताया था मैंने आपको कि जैसे आपने इसको क्या लिख दिया, जैसे ही अगर ये इंफिनिटी चला गया तो सॉल्यूशन आपका टेंड्स टू अप्रोच होगा, तो यहां भी वही अप्रोच लगा रहा हूं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये था ना, तो इसका मतलब अप्रोचेस टूवर्ड द 1, एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, तो यहाँ तो क्लोज इंटरवल है तो 1 तो नहीं आएगा। फाइन, यहाँ ओपन है 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली -1 के लिए चेक कर लेते हैं, इसको -1 की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, y प्राइम इज 1 - y की पावर 10, बाकी जो भी नंबर है, बाकी क्या बच जाएगा, 1 + y की पावर 10 इंटू कोस वाई एट द पॉइंट y इज इक्वल टू -1, इट्स माई, दिस इज माई फाइनाइट नंबर। फाइन, तो अगर ये, अब आप देखो इसका भी इंटीग्रेट कर लो, 1 + y की पावर 10 ऑफ दी dy, अगेन इट गोस टू द इंफिनिटी एज y अप्रोचेस -1, क्योंकि ये -10 -9 आ जाएगा ना ऊपर, तो दैट मीन्स अगेन it approaches toward the -1 but not exactly 1, so the right answer is A and B are the correct answer of the problem। चलिए look at the next one, consider the initial value problem, f is the only function। अब यहां देखो, ये ना तो ये कंटिन्यूस बताया इन्होंने, ना तो ये डिफरेंशियल बताया, ना ये बाउंडेड बताया, ना ये कांस्टेंट बताया। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू, तो मतलब ये कहने का मतलब आप अपनी तरफ से f को sin x नहीं ले सकते आप। There exists a continuous function f and a belongs to the R so that the above problem do not have this solution। अगर आपका f कंटिन्यूस है तो क्या होगा ये, अगर f कंटिन्यूस है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। फाइन, बाय यूजिंग एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रॉन्ग, बिकॉज ही सेड डज नॉट हैव। द प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ f इज सेटिस्फाइड बाय लिप्सिस कंटीन्यूअस। यस, अगर f आपका लिप्सिस कंटीन्यूअस हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर f आपका नॉट सेटिस्फाइड लिप्सिस कंडीशन, तो यू कांट से दैट यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यूनिक मिल भी सकता है। फाइन, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दिस वन, देखो ये लिप्सिस कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करा बट इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन,
बाउंड से निकाल दिया था ना हमने। चलिए, इफ f is a twice differentiable function, continuous and differentiable, then the maximum interval is my r. क्या ये सही है? नो, बिकॉज क्या रह गया इसके साथ, बाउंडेड तो दिया ही नहीं हुआ ना, ना तो गिवन स्टेटमेंट में कहा है ना इस लाइन में कहा है, तो मैक्सिमम इंटरवल इज नॉट आर, तो ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, आर नहीं होगा। द मैक्सिमम इंटरवल फॉर द अबव प्रॉब्लम इज आर व्हेन एफ इज बाउंडेड, करेक्ट, कंटिन्यूअस करेक्ट, डिफरेंशिएबल करेक्ट। सो द राइट आंसर इज बी एंड डी आर द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चों एक चीज आपने नोट करी, क्वेश्चन चाहे तो कोई भी फॉर्म का आ रहा हो, फर्स्ट ऑर्डर का है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई कर रहा हूं, फाइन, लिपस्टिक्स लगा रहा हूं, बाउंड्स निकाल रहा हूं, लोअर एंड अपर बाउंड्स, यू कैन गेट द आंसर्स। इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस इन द 0, L नोड, अच्छा आपको L नोड की वैल्यू पूछ ली है और इधर मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस पूछ लिया है, चलिए दोनों निकाल देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चीज पे भी, x की वैल्यू पॉजिटिव है, फाइन, तो बाउंड निकाल लें इसका, पहले तो सॉल्यूशन देख लें, तो y प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर x मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरा y स्क्वायर से बड़ा होगा, तो अगर y स्क्वायर से बड़ा है तो दैट मीन्स y प्राइम मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ द y स्क्वायर, ऐसे तो आएगा, ये लेस देन आएगा, x इज माई पॉजिटिव तो x स्क्वायर इज माई पॉजिटिव, फाइन, x square is my greater than 0, I can add y square on the both side, that is my greater than y square, क्लियर। तो इसका मतलब इसका लोअर लिमिट तो मिल गई, अपर लिमिट नहीं मिली, बिकॉज x हैज अपर लिमिट नहीं पता, तो अपर लिमिट मैं यहां से निकाल देता हूं, इसका रिटेंगल क्या बनेगा, x माइनस 0 इज लेस देन a, y माइनस 2 इज लेस देन b, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y की अपर लिमिट कितनी आ गई, 2 प्लस b स्क्वायर, फाइन। देखिए यहां से तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला, फाइन, बिकॉज द राइट हैंड साइड इज माई कांस्टेंट, तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, y प्राइम इज y स्क्वायर, सो दैट मींस -1 ओवर y इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x है प्लस c, नाउ एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 2, x इज 0, c इज माई 2, तो इसमें फिल कर देते हैं, -1 ओवर y x माइनस हाफ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर हाफ माइनस x, तो क्या ये सॉल्यूशन हर बार एग्जिस्ट करेगा, नो, द सॉल्यूशन इज एग्जिस्टेंस ओनली, मतलब ब्लो अप कहां पे जाएगा, ये आपका ब्लो अप एट दी हाफ, तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, 0 से हाफ के बीच में, हाफ भी नहीं आएगा ना, ओपन इंटरवल हाफ, इसका मतलब एल नोट आपके पास कितना हो गया, हाफ, तो ग्रेटर देन 1 कैंसल, लेस देन सारे हो सकते हैं आपके पास, क्लियर। चलिए, अच्छा सेकंड मेथड भी, अच्छा आप कहोगे सर ये तो आपने कभी अगर आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे, फाइन, जो h आपके पास था मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b ओवर m, फाइन, वैसे भी आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है आपके पास। चलिए मैं वो भी करके दिखा देता हूं आपको, डोंट वरी। लुक एट द नेक्स्ट केस, द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, आपका f क्या है, z स्क्वायर, पहली बात तो ऑप्शन में ही है कि r नहीं है, फाइन, मतलब कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशियल है, लेकिन बाउंडेड नहीं है, बिकॉज आपके पास, फाइन। चलिए अब इसको, इसका बाउंड बना सकते हो आप, इसका बाउंड बनेगा आपसे कभी, नहीं बन रहा ना बाउंड, बिकॉज जेड स्क्वायर है, तो इसको सोल्यूशन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 ओवर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो प्लस के साथ, तो -1 ओवर जेड एक्स प्लस सी, तो फिल कर दो वैल्यू, -1 0 प्लस सी, सी इज इक्वल टू -1, सो 1 ओवर जेड इज x -1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, 0,1, फाइन, तो इसका मतलब L1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1, लेकिन ये 2 लेस देन 2 कह रहा, तो 1.5 भी पॉसिबल है, लेकिन 1.5 में तो 1 पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ग्रेटर देन 2 इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज ओनली B इज माई करेक्ट आंसर। मजा आ रहा बच्चों, फाइन, द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, फाइन, चलिए लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना आपको, तो कैसे निकले, अच्छा पिकार्ड्स थ्योरम लगानी पड़ेगी, मैंने ये बताया आपको, लार्जेस्ट इंटरवल में पिकार्ड्स लगेगा, मैक्सिमल में आप फंक्शन बाउंडेड निकाल सकते हो आप, तो इसका डोमेन बना लो,
x minus 0 is less than a, y minus 0 is less than b. फाइन. अब आप क्या था, h निकालना आप बेसिकली आपको मैक्सिमम ऑफ a कॉमा m. m is the maximum value of the y square plus, so m इसकी वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के अंदर. इसको मैं और लिख लेता हूं, इस 1 प्लस वाई स्क्र, बिकॉज को स्क्र की वैल्यू लेस देन 1 होगी और इसकी वैल्यू क्या है 1 ओवर बी स्क्र. दैट्स द मैक्सिमम ऑफ ए बी ओवर 1 प्लस बी स्क्र. फाइन. अब आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको ले लेते हैं कुछ भी नाम g ऑफ b, इसका डेरिवेटिव करके 0 कर दो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b. तो इसका डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस बी स्क्र इंटू 1 माइनस बी ऑफ 2b is equal to 0. b will be plus minus 1. बट b आपका हमेशा पॉजिटिव चाहिए बिकॉज आपको x पॉजिटिव पे है, तो b पॉजिटिव लेके तो दैट विल बी हाफ. तो 0 कॉमा हाफ इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन. तो देखिए कितना सिंपल वे में आपने इसको सिंप्लीफाई करा. अच्छा, आप इसको बाउंड से भी निकाल सकते हो. फाइन, मैं बाउंड से भी चेक कर देता हूं आपको. तो cos square is lies between 0 and 1. Cos square x is always lies between 0 and 1. I can add the y square on the both side. Y square is less than equal to, तो पहले y square ऐड करा दोनों तरफ, तो ये हो गया आपके पास, यही आएगा. दोनों तरफ y square ऐड करके y square plus 1. तो मैं इस तरफ को सॉल्व करता हूं. दैट विल बी माइनस 1 ओवर y विच इज x प्लस c. जैसे आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे यू आर अनेबल टू डिटरमाइन द c तो निकल ही ना पाएगा इन्फिनिटी. तो दैट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन विल गिव यू ओनली एज y इज इक्वल टू 0. फाइन, 0 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सो दैट विल बी dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्र. So that is a tan inverse y. Fine, which is x plus c. So whenever 0 and 0, tan inverse 0 0, c आपका 0 हो जाएगा. So y will be my tan of x. क्या ये solution blow up जाएगा कभी? Yes, the system is blow up at the pi by 2. तो आपका solution क्या होगा 0, pi over 2. कोई ऑप्शन डिस्कार्ड होता है. Pi is my 3.14, is a 1.57. फाइन. लेकिन यहाँ देखो ये सारे आंसर इसके अंदर सेटिस्फाइड हो गया. नहीं तो आप ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते थे. दैट इज अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस. ये मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है आपके पास. फाइन, बट आपसे पूछा है आपके पास लार्जेस्ट, दैट्स बाय यूजिंग द पिकार्ड्स थ्योरम. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, फॉर मोर डिटेल यू कैन वॉच अबाउट माय दिस लेक्चर इंटरवल ऑफ द एग्जिस्टेंस. दिस अ थ्योरी लेक्चर विद 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. फाइन, यू मस्ट फॉलो माय यूट्यूब चैनल एज वेल. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. If you read the statement, they are talking about the solution. पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड चीज, आपसे क्वेश्चन में के अंदर क्या पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन. सिमिलरली नेक्स्ट वन में भी आपको फर्स्ट ऑर्डर की तो है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपसे सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछ रहा है. फाइन, फाइन. एंड दैट ऑल दीज क्वेश्चन वी आर अंडर द पार्ट ऑफ द बी. तो आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आपको ये पार्ट बी चाहिए. उससे पहले कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. यू मस्ट वॉच अबाउट माई लास्ट 15 days strategy and how you can attempt the CSIR NET examination in very simple manner. I hope you can subscribe my YouTube channel. Let me know in the comment box. I will upload for you very soon. Best of luck, students. Happy learning.